Hello everyone. Today I am going to start the chapter atoms and nuclei, which is very important for your board purpose and it is very important for your term 2 exam. So now I am going to start chapter atoms and nuclei. So now come to the point. The name of the chapter is atoms and nuclei. Now the first heading is, this is very short revision. So now the first heading is Rutherford alpha scattering experiment. Actually, Rutherford did one experiment, an experiment which is related to the alpha scattering. So he bombarded alpha scattering alpha particles. So there is the particle. Suppose this experiment did by the Rutherford, and there is the one alpha particles. Clear? And here is one, we can say here is one vacuum tube or vacuum chamber, right? Or this is said to be the screen. This is the screen. He did one experiment. This is the screen and this is made up by ZNO, and there is the wall and there is the vacuum. So inside it is the vacuum, and this is the alpha particle. So alpha particle, here is the alpha particles, right? So ray of alpha particle, there is the bombarding, and here is this is gold foil which is very thin. So thin gold foil and alpha particle which is moving here, and it strikes at the gold foil. So there are number of the direction, there are the different number of the direction which strikes at the screen of the which one, ZNO, right? So some particle deflects and it also retraces back into the same path. So it is moving, then after striking it retraces back into the same path, or it deflects up to some angle of the theta, or like it deflects up to the angle of the 90 degree. It is moving like this and it deflects up to the angle of the 90 degree also. So this is one kind of the experiment, and this is the alpha particle. Clear? Which is moving and which emits from here, and this is one chamber, and there is the screen also. So we can say like this is the alpha particle is moving. So here is the one point. So what is this point? So there are the some conclusion after this experiment by the Rutherford. So this alpha particle is coming from this point. This is the alpha particle, suppose. So it stops at here and it retraces back from this point, right? So ये वापस आ रहा है, तो it retraces back, or some particles like this, it is moving to the straight line, right? Straight line here. This is point number first, this is second ray, this is third, this is also 2 dash, we can say 2 dash, and यहाँ पर अगर जा रहा है, this is 3 point, sorry, this is 3 point, right? and यहाँ पे 2 point है, जो ये यहाँ से गया, जाने के बाद इधर से देखो इसका क्या हो गया. दिस इज अल्फा पार्टिकल. क्या होता है अल्फा पार्टिकल? दिस इज अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल में कौन सा साइन होता है? अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल डबल ऑफ द प्रोटॉन. चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 into चार्ज ऑन प्रोटॉन. तो चार्ज ऑन प्रोटॉन 2 into +1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम.
So this is 3.2, this is positive, we can use positive, minus 19 coulomb. It is the value of the charge on the alpha particle. So it is moving, so it retraces back and it is moving like this, so it deflects. ये यहाँ से क्या होगा, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया एंड दिस इज 2 डैश पॉइंट. जैसे 2 डैश पॉइंट यहाँ पर आया तो इसका यहाँ पर असर है, ये जो है यहाँ पे क्या इफेक्ट है पॉजिटिव का. दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली साइन, राइट, पॉजिटिव साइन. तो ये क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया. और क्या हो गया कि अगर ये पॉइंट इधर से गया, सपोज यहाँ से स्ट्रेट गया, स्ट्रेट जाने के बाद ये 90 डिग्री भी बना सकता है, कुछ एंगल बना सकता है. यहाँ से एक पॉइंट कर दिया, यहाँ से रे गई, ये 90 डिग्री आ गई. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी. बम्बार्डिंग करने पर क्या हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश, व्हाटएवर. सो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्रेट होकर गया और ये डिफ्लेक्ट हो गया, राइट. तो कंक्लूजन में क्या आ गया कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही गया तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. तो अगर ये रिट्रेसेस हो रहा है तो रिट्रेसेस का मतलब ये टच नहीं कर रहा है, ये रिपल हो रहा है. यहाँ पे गया, रिटार्डेशन हुआ, ये वापस आया, इसका मतलब ये कुछ डिस्टेंस में जाने के बाद वापस आया. तो दिस इज, जो ये चार्ज है वो यही चार्ज होगा. इससे कंक्लूजन से आ गया दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज. अब ये डिफ्लेक्ट हुआ, इस पॉजिटिवली चार्ज का असर इफेक्ट आगे तक है. तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ एंगल है, कुछ 90 डिग्री हो गया और कुछ और आगे जाने पर ये देखिए रे ऑफ लाइट गई. तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन चली गई. रे ऑफ लाइट क्या गई, स्ट्रेट लाइन गई. यहां से रे ऑफ लाइट गई, स्ट्रेट लाइन गई. तो ये स्ट्रेट लाइन चली गई. दिस इज 3 डैश, दिस इज 4 डैश. स्ट्रेट लाइन गई डिफ्लेक्ट होने में. तो यहां पे क्या हो गया, कोई इसका असर नहीं हुआ, इंपैक्ट नहीं आया. तो इसमें 3 कंक्लूजन. एक कंक्लूजन क्या हुआ, ये गया तो वापस आया, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होगा. दूसरा ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है. तीसरा ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. सेम थिंग इज देयर आल्सो. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो. अल्फा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये मैं रब कर रहा हूं. तो नाउ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया, कंक्लूजन क्या हो गया कि यहां से सीधे जा रहा है तो यहाँ पे सेम चार्ज की वजह से रिट्रेसेस हो गया. इसका इफेक्ट ऊपर हुआ, इसका इफेक्ट पॉजिटिवली चार्ज का थोड़ा सा ऊपर हुआ. इसके कारण क्या हो गया, इट डिफ्लेक्ट्स अप टू सम एंगल. सो एंगल कैन बी द 90 डिग्री, एंगल कैन बी ऑल्सो डिफरेंट एंगल. सो दीज आर द मेन कंक्लूजन. क्लियर. यही छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये गोल्ड फॉयल हो गई, ये एक चैम्बर हो गया जिसमें ये स्क्रीन हो गई. ये यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है जो लेड यहाँ पे एक लेड स्टैंड है या लेड लगा हुआ है, लेड में इसको रखा है जिसकी वजह से यहाँ से क्या हुआ, बम्बार्डिंग करी. जब ये गया तो ये जाने के बाद ये डिफरेंट गया. ये देखिए यहाँ से ऐसे हुआ. वेदर ये एक्सपेरिमेंट से ये डायग्राम आया, इससे क्या हुआ, एक कंक्लूजन आ गया. इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के सामने जब एटम आता है तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है. ये आपका सेंट्रल पार्ट होता है. इसके आगे जाने पर स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट नहीं आता. तो ये सीधे चला है इसके डिस्टेंस पर. लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इसका हल्का सा इफेक्ट है जिसकी वजह से इट इज मेकिंग द एंगल ऑफ द 90 डिग्री और up to also some angle which is less than 90 degree. So these are the main factor. Clear. तो ये सिंपल सा कंक्लूजन है. इसके बाद रदरफोर्ड ने के एक ड्रॉबैक आए थे कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स. ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि ड्रॉबैक बताइए रदरफोर्ड का. रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन तो किया था लेकिन इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये बोर्स ने बता दिया. तो इनका इसकी वजह से इनकी कुछ कमियां आ गई जिसको बोलेंगे ड्रॉबैक्स. Drawbacks of Rutherford atomic model. So what are the drawback number first is he was unable to explain the stability of an atom. अल्टीमेटली क्या होगा, इन्होंने जो एटम की स्टेबिलिटी है उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो ये एटम की स्टेबिलिटी को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो ये इनका फर्स्ट ड्रॉबैक है. आता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. क्लियर. सेकंड क्या हो जाएगा कि द
the accelerated charged particle radiates एनर्जी। अब इसमें क्या हो गया, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। और वी कैन से द spectrum of radiation emitted by an atom should be continuous। इसका मतलब इसका जो रेडिएशन हो रहा है उसमें एक स्पेक्ट्रम निकलता है। स्पेक्ट्रम कलर विब्योर पड़ा होगा, मल्टीपल कलर, कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल कलर। जैसे आप बैंड्स बनाते हो या रेनबो बनाते हो उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, ऐसा ही इसमें रेडिएशन होता है, उसके मल्टीपल कलर्स में स्पेक्ट्रम होता है। तो एटम एमिटेड बाय द एटम शुड बी कॉन्टिन्यूअस, तो वो रेडिएशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये दो फैक्टर हो गए। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। Second is the spectrum of the radiation emitted by an atom should be continuous. So these are the two drawbacks. And this drawback is very important for your term 2. So now I am going to rub. So if you want, then you can take the screenshot also. So now come to the another point. Another point is most important point. Most important kind of the heading. It is most important. बोर्स ने इसको एक्सप्लेन किया, फिर इसका ड्रॉबैक देने के बाद बोर्ड एक्सप्लेन। तो बोर्ड ने जो एक्सप्लेन किया उसको बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स। आता है कि व्हाट आर द बोर्स पोस्टुलेट्स, व्हाट इज द बोर्स। उन्होंने क्या किया, तो नंबर फर्स्ट इज द quantization condition so what is the quantization condition। यहाँ पे एटम होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस विच हैज द पार्टिकल proton, so it is the nucleus and here is the electron is moving like this। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये क्या होता है कि ये वेव की तरह इस तरह से मूव करता है। इट बिहेव्स एज अ वेव बिहेव करता है। तो वेव में यहां से यहां तक आया, तो ये एक वेव क्या हुई, अगर वेव की बात करते हैं दिस इज द वेव, ये वेव चली तो वेव की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा होती है। ऐसे नंबर ऑफ द वेव्स कितनी है, सो मैनी वेव्स। सो नंबर ऑफ द वेव्स क्या होगी, लैम्डा प्लस लैम्डा टोटल इज इक्वल्स टू n टाइम्स। ये n टाइम्स तक जाएगी तो नंबर ऑफ द वेव्स क्या होगी, n लैम्डा वी कैन से। n लैम्डा इज द टोटल नंबर ऑफ द वेव, राइट। सो इसमें जो बोस क्वांटम कंडीशन में, क्वांटाइज का मतलब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म से और स्मॉलेस्ट फॉर्म में डिवाइड नहीं करते। जैसे बोलते हैं कि आप मार्केट में गए, आपने कुछ खाया, आपने राइस खाया, तो राइस खाया कितना खाया, 1 पार्टिकल, एक दाना खाया उसका 10 दाने खाया, ऐसे तो नहीं होगा। तो क्वांटिटी क्या हो गई, एक फिक्स हो गई। जैसे इफ वी टॉक अबाउट द मार्कर, तो ये एक मार्कर हो गया, दूसरा लोगे तो अनदर मार्कर हो जाएगा, 2 मार्कर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा कि देयर आर द 1.5 मार्कर्स, राइट। सो वी कांट डिवाइड इट, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वो होता है क्वांटाइजेशन। तो इसी तरह क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या होती है कि ये अगर मूव करता है तो इट बिहेव्स एज अ वेव, राइट। तो इसमें टोटल n लैम्डा हो सकता है इसकी डिस्टेंस। तो इसमें बोस ने क्या बताया, इसमें यहां से यहां तक सपोज डिस्टेंस हो गई, रेडियस हो गई r, और ये वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी इज v वेक्टर, इट इज v वेक्टर, इट इज r वेक्टर। ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो, या ये हो गई रेडियस एंड दिस इज द वेलोसिटी। सो
what is the angular momentum? Angular momentum is r vector cross p vector. क्लियर, ये 11th में भी पढ़ चुके होंगे. तो j vector if you want then you can use the l also. l use कर सकते हो, l vector. तो l is equals to क्या होगा, if we want to take the magnitude of it, l is equals to magnitude में mod लगा दोगे. This is r vector cross p vector. So rp sin theta, where p is equals to mv, p is equals to linear momentum. P is called the linear momentum. So here r mv sin theta. Theta is the angle between r and the p. r and the p का एंगल कितना बनेगा? इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर जा रही है तो ये तो आपका स्केलर हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो लीनियर मोमेंटम भी इधर जाएगा. तो लीनियर मोमेंटम shows this direction because it depends on the velocity. ये इधर गया, ये इधर गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. उससे क्या आएगा? L is equals to mvr, right? It is the equation number 1. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई. और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? n टाइम h अपॉन 2 पाई. ये आपने डी ब्रोगली में ही देखा होगा. डी ब्रोगली जब आपने पढ़ा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डी ब्रोगली में एन एच अपॉन 2 पाई होता है. एन इज द नंबर ऑफ द इंटीजर्स वेयर एच इज इक्वल्स टू 6.64 6.67 या 64 whatever into 10 this is minus 37 6.67 sorry here 6.67 into 10 raised to the power minus 34 joules second minus 1. It is the Planck constant, and h is also said to be the Planck's. This is called Planck's constant. क्लियर. तो ये वैल्यू आ गई इसकी एंगुलर मोमेंटम की. सो इसमें वी हैव गॉट द टू वैल्यू. फर्स्ट इज दिस वन अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ऑफ दिस डायग्राम, एंड व्हाट इज दिस. अब देखिए ये आपका एटम है. कभी आपने सोचा ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. ये इसमें अगर मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. So इसमें there is the one force which is toward the center, that is said to be the centripetal force. If this electron is moving, it is circulating. अगर ये move कर रहा है तो center की तरफ एक force आएगा. This force is said to be the centripetal force. And there is another force due to the electrostat. This is positive, this is negative. तो प्लस माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. प्लस माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो देयर इज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू प्लस एंड माइनस, एंड दिस इज called electrostatic force. So there are the two forces. First is the UCM के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैंने अभी थोड़ी देर पूछा, आपने ये कभी सोचा है कि दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस में होते हैं? यहाँ डिस्टेंस कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर. और इसका साइज कितना होता है? ये 10 रेज टू पावर माइनस 15. 10 रेज टू पावर 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस टू माइनस. बट हेयर व्हाट इज द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस? इस न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? इस न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो होगा 10 रेज टू माइनस 15 मीटर, यानी 10 रेज टू माइनस 15 मीटर. 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी. 1 फर्मी होता है, ठीक है, इसको याद रखना. 1 फर्मी इज इक्वल टू, तो ये 1 फर्मी के साइज के इक्विवेलेंट होता है. इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी वेरी लेस देन 0. अब देखिए कभी आपने सोचा होगा प्लस और माइनस एक दूसरे को चिपकते क्यों नहीं, अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, ये मूव क्यों करते हैं, अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? बताओ, सोचो. ये प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये इससे चिपक जाना चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है. ये इससे क्यों नहीं चिपकता है? रीजन अभी मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर, राइट. तो दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, एंड विच इज वेरी smallest
एंड विच इज वेरी स्मॉलर देन द जीरो, जीरो से भी छोटी, ऑलरेडी इसमें क्या है, ये इतनी कम डिस्टेंस है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इससे चिपकता नहीं, इस वजह से क्या होगा, इट इज रोटेटिंग, ये इसमें क्या होगा, सॉरी इट इज रिवॉल्व, इट इज सर्कुलेटिंग, क्लियर, तो ये सर्कुलेट होगा। तो एक क्वांटम कंडीशन में ये बना कि L इज इक्वल टू दिस और दिस, तो दोनों को इक्वल करोगे तो क्या होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू, ये आपका वैल्यू आई, तो ये क्वांटम कंडीशन में ये निकल के एक इक्वेशन आई, वेयर आर इज द रेडियस हो जाएगा, वी इज द वेलोसिटी, एम इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सब तो दिया हुआ है, 2 पाई हो गया, दिस इज नंबर ऑफ द इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि आर निकालो, अगर ये वैल्यूज दिए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वांटम कंडीशन है, बोर्ड ने ये बताया था। पहला क्या हो गया, क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन का मतलब भी बताया था कि ये पर्टिकुलर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, सब डिवीजन नहीं हो सकता इसका, क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बोर्ड पोस्टुलेट्स में सेकंड पॉइंट, ये बोर्ड टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हेडिंग इज द न्यूक्लियर कंसेप्ट, न्यूक्लियर कंसेप्ट, न्यूक्लियर कंसेप्ट इट्स वेरी सिंपल, इसमें आपको एटम का पता है कि ये दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इट रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन में यहां पर क्या कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ द यूसीएम, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, वो यूसीएम चल रहा है। प्लैनेटरी मोशन होता है, जैसे कि सन होता है, अर्थ होता है, तो अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, so it is in planetary motion and it consists of the UCM, so same thing is there also, this is sun, this is earth मान लो, तो ऐसे ये चक्कर लगा रहा है, तो इसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, दिस इज सेड टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो सेंट्रीपिटल force, so what is the centripetal force, Fc is equals to mv square upon r, where r is the radius of it। अब रेडियस की भी बात की जाएगी बाद में, तो ये हो गया, एंड इसमें क्या होगा, प्लस माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, सो देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस वन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई। इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्लियर। तो न्यूक्लियर कंसेप्ट में क्या होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, तो इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये क्या होगा, इट यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसमें सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लगता है, दिस इज सेड टू बी द न्यूक्लियर कंसेप्ट। तो फर्स्ट क्या था, क्वांटाइजेशन कंडीशन, सेकंड क्या है, न्यूक्लियर कंसेप्ट। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, इसका थर्ड पॉइंट की हेडिंग है स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब फिक्स ऑर्बिट, तो अगर दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ दिस, तो इसमें क्या होता है, अगर ये एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बोथ पोस्टुलेट, अगर इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही, तो ये फिक्स ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, इसको बोलोगे जो ये रास्ता है, जो ये सर्किल बना, ये ऑर्बिट हो गया। पाथ, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो एंटी क्लॉक अगर चल रहा है तो इट इज मूविंग, तो इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करता, इसी में घूमते रहता है, तो फिक्स ऑर्बिट इज सेड टू बी द स्टेशनरी ऑर्बिट, और फिक्स पाथ इज सेड टू बी द स्टेशनरी पाथ। तो इसमें जो है स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स पाथ कुछ भी कह सकते हो, तो इसमें क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स in a fixed path is called stationary orbit। ये स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। एंड अब फोर्थ देखते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जो कि लास्ट है। ये 4 पॉइंट है बोथ पोस्टुलेट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम। सो नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट क्या है आपका,
बताया था अभी फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी ये होगी, एनर्जी ई होगी, जो इक्वल होगी h इंटू न्यू के, वेयर h क्या है, h क्या है, h इज सेड टू बी द, h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक एक साइंटिस्ट था, उसने कांस्टेंट दिया था, राइट। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डुअल नेचर में भी h की वैल्यू क्या होती है 6.63, वैल्यू ऑफ द h, वैल्यू ऑफ द h इज 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second minus 1. This is, ये याद रखो, और frequency and nu is equals to frequency। तो ये जो है एनर्जी है इसकी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा h इंटू न्यू। ये हो गया फ्रीक्वेंसी कंडीशन की, फ्रीक्वेंसी के साथ जो एनर्जी आती है दैट इज सेड बाय h न्यू। तो 4 कंडीशन हो गई स्टेशनरी ऑफ फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो कितनी कंडीशंस आ गई, 4 आपके टाइप्स हो गए। ये हो गया बोर पोस्टुलेट। पहला टाइप क्या था, क्वांटम कंडीशन, सेकंड है न्यूक्लियर कंसेप्ट, थर्ड है स्टेशनरी ऑर्बिट, बताया था फिक्स पार्ट, फोर्थ क्या है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो ये 4 पॉइंट हो गए बोर पोस्टुलेट्स के। अब आ जाता है हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1h1 की बात करते हैं। वो 1h1 हाइड्रोजन एटम 1h1, तो ये क्या हो गया, एक हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, सेकंड अगर बात करते हैं रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, ये हेडिंग है। हाइड्रोजन एटम में रेडियस में फॉर्मूला क्या बनता है आपको पता है, क्वांटम कंडीशन की अभी मैंने दिया था आपको बोर पोस्टुलेट में, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। एक ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे अगर r निकालोगे तो nh अपॉन 2 पाई mv, ये r निकाल लोगे। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपको पता है कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा था, अभी मैंने बताया था दिस इज mv स्क्वायर बाई r, अभी बिल्कुल फ्रेश बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मतलब आपका क्या लोगे, 1h1 में 1 प्रोटॉन हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन z मान लोगे, इस पे चार्ज q1 हो गया, एंड यहाँ पे जो q2 चार्ज हो जाएगा, दिस इज e, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो q1 इज Ze एंड दिस इज, तो ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये होता है इसमें मॉड लगाते हैं। तो पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके होगे आप लोग, q2 मॉड लगाते हैं इसलिए। तो ये क्या बनेगा, दिस इज, अगर इसको आप लोग क्या करोगे, k मान लो, k दिस इज Ze एंड दिस इज e अपॉन r स्क्वायर fe। इसको और इसको इक्वल करोगे, सेंट्रीपिटल और इसको, तो क्या होगा, Fc इज इक्वल्स टू Fe। R इज ऑलरेडी देयर, वी हैव गॉट फ्रॉम द क्वांटाइजेशन कंडीशन। सो Fe mv स्क्वायर अपॉन r, इसकी जगह वी कैन प्लेस k Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्लियर। वी कैन नेग्लेक्ट द r, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इट, वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, r इधर आ जाएगा, r इधर आएगा तो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू k Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, क्लियर। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो r एक ये भी है, r ये है, दोनों को इक्वल करके तो क्या आएगा, nh फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second. So equation first is this, equation second is this. क्या आएगा, nh upon 2 pi mv is equals to k Ze square upon mv square. So now we can put the value, m से m गया, ये इससे ये निपट गया, तो वैल्यू क्या होगी, दिस इज v, v विल बी k Ze स्क्वायर अपॉन इनटू 2 पाई, 2 पाई इधर आ जाएगा, 2 पाई टू दैट साइड, तो ये v हो जाएगा, nh इज दिस वन हियर, राइट, एट द डिनोमिनेटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द v। k क्या है, k क्या है, व्हाट इज द k, k इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k क्या है 1/4 पाई। फिर से देखो mvr इज इक्वल टू दिस वन, तो इससे ये आ गया,
सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इफ वी कंपेयर दीज टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया, काटा पीटा कटपिट किया, तो ये आ जाएगा आर, एक आर ये दोनों को इक्वल कर दोगे। इक्वल करने में इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, दिस इज द के वी नो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द वी निकालना है। अब इसके बाद आपको आर निकालना, वी नो द वी ये बनता है तो आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। If we talk about equation, because here we need to find the value of the small r radius. So here this is the formula, r is equals to nh upon 2 pi m. V is k z e square 2 pi upon nh. It is the value. It is the value. So value of it is this one. इससे क्या निकालोगे, आर निकालोगे, ये नीचे वाला ऊपर कुछ से जंप कर जाएगा, तो ये जंपिंग करेगा। दिस इज सेट टू बी द एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, राइट, एम के जेड ई स्क्वायर, क्लियर। सो इट इज द वैल्यू। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द की के? सो हियर ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई एम गोइंग टू रफ इट, क्लियर। और रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको हटा देता हूं। नाउ हियर वैल्यू विल बी, आर की वैल्यू निकालनी, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम के की वैल्यू लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें, पाई से पाई गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, r is equals to n square h square pi m z e square अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। फिर से देख लो, ये हो गया, k की वैल्यू सिर्फ रखी, काटा पीटा, फाइनल वैल्यू ये आ गया, एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसको याद रखोगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। क्या हुआ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर। क्या बोला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। सो ये वैल्यू याद रखनी, जो एग्जाम में आता है, रेडियस पता है तो याद रखोगे, इससे कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर। एक न्यूमेरिकल भी आएगा जो भी मैं बताऊंगा आपको, इससे रिलेटेड बोर्ड में आता है। सो नाउ रेडियस, वी हैव गॉट द रेडियस ऑफ इट। रेडियस से रिलेटेड इट इज वेरी important, it is most important for your term 2 exam. So radius will be, we need to write the formula over here, n square h square upon epsilon naught pi m z e square. It is the value of the, इसी की वैल्यू को यहाँ पे नोट करते हैं, याद रखना हमेशा, रेडियस ऑफ इट इज दिस n square epsilon naught pi m z e square, right? Now come to the another point, kinetic energy. अब आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। वी नो द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r, and the electrostatic force will be, अभी बताया था, q1 q2 upon r square। इन दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, mv² by r is equals to 1/4 pi epsilon naught z e square upon r square। r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, we can find the mv² is equals to 1/4 pi epsilon naught z e square upon r। So it is the value of the mv²। mv² की वैल्यू इसमें रख दोगे, किसमें, इसमें। So we have got, we can compare electrostatic force और centripetal force को कंपेयर करोगे, mv² by r 1/4 pi q1 q2 upon r square। ये q1 q2 लिया, q1 की वैल्यू ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और q2 की वैल्यू z e है। जब आप इसको कंपेयर करोगे यू कैन गेट दिस वन। तो आप mv² by r को आगे कैलकुलेट करने में क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर रखना है, दिस इज द वैल्यू mv² by r। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ
mv square. What is the half mv square? Mv square is this one, half mv square 1 upon 4 pi epsilon z e square upon r. So it is 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r. इट इज द वैल्यू. आर ऑलरेडी दी हुई है. आर कहाँ दी है? आर ये दी है. आर को यहां से रख दोगे जो ऑलरेडी बताई थी, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम. इट्स वेरी सिंपल, इट जस्ट ओनली द कैलकुलेशन. कोई ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है अगर आपके रेडियस या ये पूछा है, इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना 2 बार 3 बार लिख लिख के याद करना. ओके फाइन. सो नाउ हियर दिस इज 2 4 द 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन r. r कितना है? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर. क्लियर. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? इसमें से क्या कैंसिल होगा इसको देख लेते. 8 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. पाई एम जेड स्क्वायर को ऊपर कर दोगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते. पाई एम जेड ई स्क्वायर. राइट. अब हाफ एम बी स्क्वायर निकाला, दोनों को कंपेयर किया. एम बी स्क्वायर निकाला, दोनों को कंपेयर किया. कंपेयर करना, एम बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई हाफ एम बी स्क्वायर. एम बी स्क्वायर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. आर की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे. अब इसको सॉल्व किया जाएगा. यहां रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ. राइट. नाउ द वैल्यू आई. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट वंस अगेन 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर दिस वन. तो ये वैल्यू हो गई. इससे देखो ये जेड ई स्क्वायर 2 टाइम्स है. क्या होगा? पाई से पाई चला जाएगा, वैल्यू आएगी 1 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो ये काइनेटिक एनर्जी है जिसको आपको याद रखना है. ठीक है. तो अब वैल्यू निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी की. राइट. तो ये हो गया आपका. राइट. तो ये काइनेटिक, ये रेडियस हो गई. अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी निकालोगे यहाँ पे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस वन 1 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z स्क्वायर e to the power 4. Now value will be z square e to the power 4 m n square h square. It is the value of the kinetic. तो सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे उतारी, z square e to the power 4 n square h square. So it is the value of the kinetic energy. तो ये आपकी रेडियस हो गई. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. ठीक है. इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रिवाइंड करके पॉज कर लिया करो, देख लेना वीडियो को. नाउ लिसन. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम. काइनेटिक निकाली या रेडियस निकाली हाइड्रोजन एटम की, या काइनेटिक एनर्जी निकाल ली. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होती है. R स्क्वायर फोर्स में होता है, और फोर्स में R स्क्वायर होगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव होता है. लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे. तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन है. ओनली वन रहेगा. इट इज मूविंग. तो जब ये मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, एक रहेगा. तो इस पे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा. नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे होगा -e. और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा? Ze हो गया. इट इज r इज द रेडियस ऑफ इट. तो पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल्स टू -1/4 पाई। हियर वी नीड टू यूज द माइनस बिकॉज यहाँ पे चार्ज माइनस में, जेड स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू वो रखोगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, राइट, इट इज द वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का बहुत पूछा जाता है फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी ये ऊपर जम कर जाएगा, माइनस लगाओगे, माइनस भूलना नहीं है, माइनस लगाओगे तो माइनस नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इंटू पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। तो क्या क्या कटेगा, पाई से पाई गया, राइट। वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जेड, जेड दो बार है, एम 2 टाइम्स जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, डबल हो जाएगा पावर, और ये क्या है 4, दिस इज 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इसकी, क्लियर, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे रख देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो इसमें क्या हो गया, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, दिस इज एम। So here we have kept the value of the potential energy here. This is 4 epsilon naught n square h square, ये वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जैसे पूछा जाता है कि रिलेशन बताओ, तो क्या रिलेशन बता सकते हो उसमें, व्हाट रिलेशन यू नीड टू राइट, कि राइट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो क्या लग रहा है, देखो बस 8 का गेम है यार, सिर्फ 8 का है, 8 बस आया, यहाँ पे 4 आया, यानी कि ये क्या हो गया 1/2 टाइम्स है। सो हाउ टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताइए, के ई इज इक्वल्स टू पी ई 1/2, यानी अगर पीई में 1/2 कर दो तो के ई के बराबर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला से बस इतना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी है, पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो आप डबल कर दोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लो। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 3 आपको रेडियस बता दिया, काइनेटिक एनर्जी बता दी, पोटेंशियल एनर्जी बता दी, और ये बता दी, इसको कर लो, पेपर में आना है, पक्का आएगा, इसको तैयार करो, इससे रिलेटेड या तो क्वेश्चन आएगा या ये आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला वहां लिखा है, आप सीधे वैल्यू पुट कर दो, T stand for total energy. So here kinetic energy 1/8 epsilon naught. Here आपको नेगेटिव लगाना ना, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव लगा था, याद रखो, पॉजिटिव है क्योंकि एक चार्ज था ना नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव, तो यहां पर आपको नेगेटिव भी लगाना, जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, क्लियर। तो वैल्यू विल भी क्या होगा इसमें, हाफ एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस करके इधर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी विल बी, इसमें से कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड 4 इज कॉमन, 4 को कॉमन लोगे, दिस इज 1/2 माइनस 1, क्योंकि ये सेम हो जाएगा, 1/2 को बाहर हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी विल बी 1/2, दिस माइनस हाफ जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला ऑफ द टोटल एनर्जी इज दिस। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, तो टोटल एनर्जी भी लिख दो, तो वो क्या बनेगी, तो माइनस का इधर हो जाएगा, तो माइनस का जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम
z इसका e टू द पावर 4m माइनस 8 हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर, इट इज द वैल्यू ऑफ द दिस वन m माइनस करके ये वैल्यू। अब देखिए ये सब सिमिलर दिखाई दे रही है आपको, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 और 8 का डिजिट का डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू ये हो जाएगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू देखो काइनेटिक एनर्जी की सेम है बट ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द, इसमें क्या बनेगा, दिस इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, तो ये एक नए नए फॉर्मूले हो गए कि इसके बीच क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट याद रखना है। एक तो आर याद रखना, दिस इज आर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल। तो दीज आर द वैल्यूज। तो ये वैल्यू यार है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन याद रखोगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अभी बताऊंगा। तो नाउ कम टू द पॉइंट, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए ये एनर्जी हो गया, तो एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या आ गया इसमें, z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर, आपको E पता है, E क्या होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दिस इज 1.6 10⁻19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट पता है क्या होता है 8, ये दिया भी जाता है एग्जाम में, 10⁻12 यूनिट रख देना। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट अभी बताया था, -32 जूल सेकंड -1, n इज इक्वल्स टू जो भी होगा 1 2 3। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो टोटल एनर्जी विल बी क्या बनेगा, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको जब सॉल्व करोगे -13.6 अपॉन n स्क्वायर हो गया, तो n दिस वन इज द टोटल एनर्जी ऑफ इट, ये टोटल एनर्जी आ गई। क्लियर, तो ये टोटल एनर्जी आ गई, तो ये एक फॉर्मूला बन गया टोटल एनर्जी का, राइट। अब देखिए इसमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये बन गया है। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, अब बात करते हैं वी टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रल सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर इसमें n इज इक्वल टू, आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ये फाइनल वैल्यू रखता हूं बस। अब देखिए इसमें क्या हो गया, एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अगर इसमें आपको इफ n इज इक्वल्स टू 1 रखोगे, इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, En -13.61 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट। n इज इक्वल्स टू 2 रखोगे तो En इज इक्वल्स टू 13.6 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 0.34 e। क्लियर, नाउ इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करो, इसमें कितना होगा, 4 3 12, राइट, 0.34। नाउ n इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं, 3 रखने में क्या होगा, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, राइट। तो इसमें वैल्यू आएगी माइनस का 0.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, सिमिलरली आपको क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 4 रखोगे, 4 रख के क्या होगा, En इज इक्वल्स टू, दिस इज E1 हो जाएगा, दिस इज E2 हो जाएगा, दिस इज E3 हो जाएगा, दिस इज E4 हो जाएगा, -13.6 16 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.85 EV समथिंग ये हो जाएगा। क्लियर, नाउ जो भी वैल्यू आएगी इसी तरह n इज इक्वल्स टू 5, राइट, n इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो क्या होगा, -13.5 इंटू 5 का स्क्वायर, 13.5
देखिए जो ये वैल्यू आई आपको वैल्यू कैलकुलेट, ये वैल्यू देखो गड़बड़ हो गई है, ये क्या हो गई आपकी 0.34 नहीं हो गई 3.4, थोड़ा जल्दी में यही होता है 3.4 राइट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज दिस वन। इसी तरह इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस का अब आप डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इज इक्वल टू 6 लगा के आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब आपको ये लाइमर स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ एन हाइड्रोजन एटम लगाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा ध्यान से देखना। यहाँ पर एन, ये जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन बिकॉज देयर इज नो स्पेस। So right, I have to draw the spectral series of an hydrogen atom. So E1 is this one, E2 is this, E3 is this, E4 is this, E5 is this and so on, ऐसे चलता चला आएगा। तो आपको ये पता है E1 E2 E3 क्या हो गया, राइट। अब देखिए जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है E1, E1 की वैल्यू क्या है, E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला क्या हो गया, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द ई टू इज इक्वल्स टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 is equals to minus 1.51 electron volt, E4 is equals to minus 0.85 electron volt, E5 is equals to minus 0.54 electron volt. So these are the values. So how to draw the spectral series में कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, इसका डायग्राम बहुत आता है स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्पेक्ट्रल सीरीज का डायग्राम आता है, इसको आप देख लेते हैं। क्या होगा, एन, एन की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यहाँ पे ये हो गया लाइमर सीरीज, लाइमन एम, लाइमर सीरीज में n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 में E1 कितना है, E1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 13.6 EV, ये नीचे की वैल्यू, तो इसको बोलते हो ग्राउंड स्टेट। क्या बोलोगे, ग्राउंड स्टेट। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आप ये समझोगे तभी आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड आते हैं, फिर आप कैसे कर पाओगे कंसेप्ट में। तो आप कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, राइट। कॉपी पेन निकाल के रखा है, इसको नोट भी कर लेना। लाइमर एक साइंटिस्ट है, उसने पहली सीरीज दी थी, इसको कहेंगे नीचे की, तो एन इक्वल टू 1 पे, दिस इज ग्राउंड स्टेट, इसमें एनर्जी कितनी है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज ईवी, इट इज इलेक्ट्रॉन, इट इज ईवी। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल टू 2 पे E2 कितना है, E2 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं बाल्मर, बाल्मर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। लाइमर के बाद दिस इज बाल्मर सीरीज, ये साइंटिस्ट थे, n इज इक्वल टू 2 पे दिया था, ये हो गया। ये अगर ग्राउंड स्टेट है तो इसको बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलोगे, ग्राउंड स्टेट को ना बेसिक ही है। n इज इक्वल टू 1 पे ग्राउंड स्टेट है, तो n इज इक्वल टू 1 रखा, वी हैव गॉट दिस वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है अभी ये भी बताया जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, राइट, इट इज n इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब ये थोड़ा सा गैप कम होता है क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे क्या हो गई, देखो एनर्जी धीरे धीरे ये कम होती जा रही है ना, ये बड़ी फिर ये कम, ये और कम, तो धीरे धीरे गैप भी इसका कम होगा, फिर थोड़ा सा कम आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 पे, n इज इक्वल्स टू 3 पे क्या है, E3 कितना है, दिस वन, E3 की वैल्यू वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द E3, E3 की वैल्यू रखेंगे, E3 इज इक्वल्स टू दिस वन माइनस 1.51 EV। इसको बोलते हैं पास्चन, इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, FASCHAN, राइट, पास्चन सीरीज। सो हियर पास्चन सीरीज, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेड टू बी द सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
सो दिस इज सेकंड एक्साइटेड। अब धीरे धीरे क्या हो गया, और देखो एनर्जी इसकी वैल्यू कम आ रही ईवी, तो क्या होगा यहाँ पे E4 में और कम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा गैप कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाएगा गैप। इट इज n इज इक्वल्स टू 4। E4 कितना है, E4 इज इक्वल्स टू माइनस 0.85। दिस, इसको क्या नाम बोलोगे आपका, लाइमर, लाइमन, बार्मर, पाशन एंड दिस इज ब्रैकेट। ब्रैकेट भी नाम है, ब्रैकेट इज द नेम। ब्रैकेट सीरीज राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अब क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ इट, इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू कितनी है, दिस वन। थर्ड वाला ये 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 हो जाएगा, N4 हो जाएगा। N4 है, वो थर्ड लिखा है। अब फर्स्ट है, फर्स्ट में N क्या है, एक ज्यादा हो जाएगा, 4। 0 ग्राउंड स्टेट प्लस 0, तो N क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ध्यान है ना, एक ज्यादा होगा। तो ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड है, बट हियर N इज इक्वल टू 2, तो 2 रखोगे E2 ही आ जाएगा। सेम थिंग इज देयर, यहाँ पे हो जाएगा N इज इक्वल टू 5, सॉरी, अब ये गैप और थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। फिर इसी तरह दिस वन इज द 6 डॉट डॉट, ऐसे 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 इस तरह से स्पेक्ट्रम दिखेगा, चलता चलाएगा, N इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, एक लेवल बनाना है, एक लेवल बनाना है, तो इसके लिए ये यहाँ पर आपको एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। एरो आएगा जो नीचे की तरफ आएगा, लाइमर की तरफ, यहाँ से ये एरो आएगा, दिस एरो 2, फिर ये आएगा, दिस इज 3 एरो। एरो बन रहा है, इसके ऊपर एरो बन रहा है, यहाँ एरो बना दो। लाइमर तो समझ गए, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज लाइमर, राइट। वी नीड टू ड्रॉ द एरो हेयर। अब इधर आ गया एरो, राइट। अब ऐसे ही ये एरो बनता चला गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये लाइमर का हो गया। अब यहाँ से बार्मर का एरो बनेगा, तो इधर से यहाँ पे कई सीरीज बन गई। ये बार्मर का एरो इधर से बनेगा, ये एरो, फिर ये एरो आएगा। देखिए एरो होगा, ये आपका यहाँ पर बार्मर सीरीज लिखा हुआ है, एरो बनाना है, इधर ध्यान से देखना, इधर स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसको। एरो लाइमर का यहाँ ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट किया, 5 आ गया, आगे आगे इंक्रीज होता है, ये देखो इंक्रीज हुआ, ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। इसी तरह बार्मर, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज में क्या होगा, यहां से जाएगा, आप इधर से लिख दो, ये यहां से यहां तक है, तो बार्मर आएगा यहां से, ये बना आपका दिस वन, ये एरो आया, ठीक है। आगे फिर ये एरो आया, नेक्स्ट ये एरो आया यहाँ पर, देन इसके बाद एक और एरो आएगा ये नीचे, ठीक है। फिर आगे n इज इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है, ये 5 है, दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 6 पर देखिए ये 6 वैल्यू हो गई, दिस इज 6 तक आपको ये लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपकी ये लाइन इधर आएगी, दिस इज बार्मर में ये हो गया। अब पार्शियन की बात करते हैं, पार्शियन सीरीज, पार्शियन इधर से ले लेते हैं, पार्शियन सीरीज की बात करते हैं, दिस इज पार्शियन सीरीज। पार्शियन सीरीज में ये लाइन हुई, आगे देखिए ऐसे ड्रॉ करते चले जाएंगे, आगे दिस वन, फिर ये लाइन हुई डियर, फिर आगे की लाइन हो गई, तो ये हो गया पार्शियल सीरीज। दिस इज बार्मर सीरीज, दिस इज पार्शियल, दिस इज लाइमर सीरीज, दिस इज लाइमर।
लाइमर सीरीज में यहाँ से आया, पार्शियल में यहाँ से स्टार्ट किया, ये लाइन को स्पेक्ट्रल को ये लाइन को बनाना है, स्पेक्ट्रल सीरीज बनाना है, देन यहाँ से स्टार्ट किया। सिमिलरली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, आगे तक चलता चला आएगा, राइट। तो हाउ टू ड्रॉ इट, अब आपका कौन सा आएगा, पार्शियल। पार्शियल का यहाँ से स्टार्ट है, इधर से स्टार्ट है, तो इधर से स्टार्ट करके वी कैन ड्रॉ लाइक दिस we can draw, clear। now here इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑलरेडी ये ड्रॉ हो चुका है, सॉरी, इसमें आपको आगे सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये गया दिस, ये आगे ड्रॉ करते जाएंगे, दिस सीरीज ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका स्पेक्ट्रल सीरीज हो गया। अब स्पेक्ट्रल सीरीज में पूछा था ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में n=1 हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड बार्मर में क्या हो जाएगा, n=2, फिर n=3, n=4, तो इस तरह से स्पेक्ट्रल सीरीज हो गया, क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि ये आपको चारों एक्साइटेड स्टेट बता दी, 5 जितनी भी हैं, राइट। अब बात करते हैं कि वी नो द फॉर्मूला ऑफ द, आपको ये पता है, वी नो दैट E = h न्यू। तो E की वैल्यू क्या आई थी, E की वैल्यू आपकी आई थी, क्या आई थी, -13.6 अपॉन h²। तो यहाँ पे h न्यू रखोगे, -13.6 अपॉन n²। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस अपॉन h(n²). h की वैल्यू पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी विल बी, जब आप फ्रीक्वेंसी को ये रखोगे तो ये आप फॉर्मूले को रख सकते हो, v = n लैम्डा, फॉर्मूला पढ़ा है। सिमिलरली v इज द स्पीड ऑफ द लाइट, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, c/λ। तो इन प्लेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द c/λ। तो c/λ रखेंगे तो क्या होगा, इसको मिटा दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। नाउ द वैल्यू विल बी, वैल्यू क्या आएगी इसमें से, आपकी वैल्यू देखें, वैल्यू क्या होगी, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो ये इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। इससे देखो, इस इक्वेशन से न्यू इज इक्वल टू -13.6 अपॉन h(n²). So c/λ, in place of the nu we can write the c/λ. c/λ is equal to 13.6 h(n²). So c/λ 1 upon c is equal to c, इधर आ जाएगा, c is the speed of the light। c क्या होता है, c is the speed of the light की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो c/λ -13.6 c(h(n²) 1 अपॉन लैम्डा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 13.6 c × h × 1 अपॉन n²। c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसको सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने में डायरेक्टली वी कैन राइट r 1 अपॉन n²। r इज द, वेयर r इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड, वेयर r इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड कांस्टेंट, एंड r की वैल्यू क्या होगी, 1.073 × 10⁻⁻1.073। हाँ, तो इसमें देखिए क्या होगा, 1.073 × 10⁻7 मीटर, ये रेनॉल्ड कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसमें आपको बताया था स्पेक्ट्रल सीरीज में ग्राउंड स्टेट बताया था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताया था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक्साइटेड स्टेट चला गया और धीरे धीरे एनर्जी कम होती गई, ठीक है। तो नाउ इसमें E1 बताया था आपको, क्या था, राइट। तो इसमें अगर बात करते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज में E क्या होगा, E जो बनेगा वो होगा आपका लैम्डा, दिस इज द लैम्डा। तो इसमें जो लैम्डा आएगा 1 अपॉन लैम्डा, इसमें 2 वैल्यू आई थी, वो वैल्यू थी E2 - E1, 1 अपॉन लैम्डा। E2 कितना होगा, -r अपॉन n2² - -r अपॉन n1², क्लियर।
E2 माइनस E1 ये जैसे 1/λ निकला, इसकी भी वैल्यू रख दोगे तो ये निकलेगा आपका वैल्यू माइनस आर को कांस्टेंट लोगे तो 1/n1 स्क्वायर, इसको कांस्टेंट को कॉमन लोगे 1/n2 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया फॉर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या था, n1 कितना था, जो आपका ग्राउंड स्टेट बना था उसमें n1 की वैल्यू कितनी थी, जो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज बताया था n1 इज इक्वल टू 1 बताया था ग्राउंड स्टेट में। तो लाइमर क्या था, लाइमर था ग्राउंड स्टेट में। आप डायग्राम देखो, जो अभी मैंने रफ किया हुआ है आप डायग्राम देख सकते हो उसको। ग्राउंड स्टेट में क्या था, n1 इज इक्वल टू 1 था। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू लोगे वो क्या बनेगी, ये माइनस होगा, माइनस बाद में कॉमन हो जाएगा, r को बाहर ले लोगे तो r इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली लाइमन बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज में क्या था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या था E2 माइनस E3। तो ये जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वो वैल्यू जब आप रखोगे तो R 1/n2 स्क्वायर 1/n3 स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 था। इसमें क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी। बार्बर हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में थी, ये आपको बता चुका हूँ। बार्बर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1/n3 स्क्वायर, n3 इज इक्वल टू 3 4 5 6। क्लियर। ये हो गया, तो लाइमर ये हो गया, बार्मर ये हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है, पास्चन करना है। तो पास्चन में क्या हो गया, 3 था, सिमिलरली पास्चन में लिखोगे। पास्चन कौन सी सीरीज है, n इज इक्वल टू क्या लोगे, पास्चन को बोलते हैं आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज R 1/n2 था, n3 स्क्वायर माइनस 1/n4 स्क्वायर, राइट। तो 1/λ इज इक्वल टू R, n3 की वैल्यू कितनी थी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, क्या सेकेंड का मतलब एक सीनियर था, n इज इक्वल टू 3 बताया था, सेकेंड है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ले लोगे, n3 की वैल्यू, n3 इज 3 स्क्वायर माइनस 1/n4 स्क्वायर। तो n4 इज इक्वल टू 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इट इज द वैल्यू ऑफ इट। सिमिलरली आप निकाल लेना, ठीक है, पार्शियल सीरीज, राइट। तो इसी तरह ये आपका टर्म 2 की थ्योरी का है ये। अब डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल आपका, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, सिमिलरली आप निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप।